کہ پنجاب حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ فوتگی والے گھر میں کھانا نہیں پکایا جا سکتا. یہ جو میت کے مرنے کے اوپر جو گھروں میں کھانے پکتے ہیں تو یہ نہیں. آپ پنڈی والوں کو یا اسلام آباد والوں کو یہ تھوڑا عجیب لگے گا کہ ہمارے ہاں تو پکتا ہی نہیں ہے. بھائی صاحب یہ آپ کے ہاں نہیں پکتا ہے. یہ اٹک چلے جاؤ, جھانڈ میں پنڈی گیپ میں چلے جاؤ, ہری پور میں چلے جاؤ, اسی طرح میاں والی کے بعض علاقوں میں, تلا گنگ کے بعض علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کی روح کانپ اٹھے گی. ادھر میت پڑی ہوتی ہے, ادھر جناب منوں کے حساب سے آٹا پکڑا ہوتا ہے اور دیگیں ابل رہی ہوتی ہیں اور جناب جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ میت کے رشتہ داروں کو اپنی میت کا غم بھول جاتا ہے. ان کو یہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ جو ہے نا کھانا ہم اس کو کیسے پورا کریں گے. بظاہر اس کو خیرات کا نام دیا جاتا ہے کہ میت کی طرف سے خیرات کرنی ہے, لیکن وہ کھانا سارے کا سارا میت کے گھر والوں کے ذمہ ہوتا ہے, وہ پکاتے ہیں. اور میں اس بات کا خود گواہ ہوں, میرے علم میں ایسے کئی معاملات کہ جب اچانک کسی کے گھر میں لاکھوں روپیہ کہاں آیا, وہ بھائی شادی کا معاملہ اور ہوتا ہے, آپ تیاری کرتے ہیں, میت اچانک ہوتی ہے. اب میت ہو گئی تو ظاہر ہے اب بکرے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے, بڑا جانور ذبح کیا جاتا ہے. پورا گاؤں جنازہ جتنا بھی پڑھنے والے لوگ ہیں, اور بعد میں نہ صرف وہ بلکہ ان کے بچے اور اس کے بعد گاؤں کی عورتیں, یہ سارے اس میت کے گھر میں بیٹھ کر یہ جناب سیر ہو کر روٹیاں میں کہتا ہوں کہ تن کے کھاتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کئی جگہوں پر میرے نالج میں یہ چیز ہے اور مجھے معلوم ہے اس چیز کا, یقینی طور پر مجھے پتا ہے کئی لوگوں کے بارے میں کہ ان کے پاس اچانک پیسے نہیں تھے تو انہوں نے سود پہ رقم لے کر وہ سارا کھانے کا بندوبست کیا. اگر اس دعوت میت پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی کا جو ہے نا اعلان کیا جا رہا ہے تو ویل ڈن سر, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا تو بالکل کیا ہونا چاہیے, خاتمہ ہونا چاہیے. میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑا اس کے حوالے سے تھوڑا آگے بڑھوں اور یہ بتاؤں کہ جناب یہ جو دعوت میت, اس کو آپ دعوت میت کہیں, اس کو آپ خیرات نہ کہیں. یہ کیسی خیرات ہے کہ بندے کے باپ کا جنازہ پڑا ہے اور ٹینشن میں, مجھے یاد ہے میرا ایک دوست, اس کا والد فوت ہوا تو جب ہم اس کو ملے تو اس کا دماغ جسے کہتے ہیں نا کہیں ادھر. میں نے کہا کیا ہوا ہے تجھے, میں نے کہا یار والد حوصلہ رکھ. تو وہ سائڈ پہ ہو کر اس نے مجھے آج بھی اس کے الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں, اس نے کہا مفتی صاحب وہ تو والد کا صاحب تو دفن ہو گئے, آپ بھی آ گئے, باقی بھی جنازہ ہو جائے گا, برادری کی روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ابھی تک گوشت نہیں ملا اور اس گوشت کے لیے میں پریشان ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس حوالے سے میں نے کئی جگہ پر خطابات بھی کی اور لوگوں کو کہا, اور آپ حیران ہو جائیں گے ہمارے اپنے سنی مولوی میرے خلاف بولنے لگ گئے اور کہنے لگے جی لگتا ہے نہیں قریشی واقعی ہو گیا, خیرات تو ڈک رہے, ایصال ثواب تو ڈک رہے. اور خدا کے بندو, ایصال ثواب اور ہے, یہ دعوت میت اور ہے. یہ دعوت میت ناجائز ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دعوت میت, وہ جو کھانا پکتا ہے وہ اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ میت کے ترکے میں سے پکتا ہے. اگر اس مرنے والے کے بھائی یا عزیز وہ اس کھانے کو پکاتے بھی ہیں تو بعد میں 40ویں والے دن وہ ساری لسٹ اس بیوہ کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہے. حقیقت میں یہ ترکہ یتیموں کا مال تھا, وہ سارے بیٹھ کے حرام کھا کے چلے گئے. یتیموں کے مال میں, یتیموں کے ترکے کے اندر تصرف کرنا یہ کسی اور بندے کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس کو میں یہاں, اچھا یہاں بھی جسے کہتے ہیں نا, جیسے میں نے پہلے کہا, اتنے بھی بیچ حدیث لے آئے نے, لو بھائی کہتے ہیں جی مشکاۃ شریف کے اندر حدیث ہے, اللہ کے نبی ایک میت پہ گئے تو وہاں پر جنازہ پڑھ کے آئے تو میت کی بیوی کی طرف سے پیغام آیا, یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کھانا پکایا ہوا ہے تو کھا کے ضرور جائیے گا. تو اللہ کے نبی خود بھی گئے اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی تھے, تو ان صحابہ نے بھی وہ کھانا کھایا. اور جب اللہ کا نبی کھا رہے ہیں تو ان وہابیوں کو کیا ہو گیا کہ یہ نہیں کھانے دے رہے. یہی ہے نا ہمارے جذبات, ایموشنلی ان کو بلیک میل کرتے ہیں یہ ظالم لوگ, اپنے ان کے مقاصد ہوتے ہیں. آؤ ذرا اس حدیث کا بھی جواب سنو. بالکل یہ حدیث مشکاۃ شریف میں موجود ہے, یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے, سنن کبریٰ للبیہقی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. لیکن سنیے غور سے, تسامخ ہوا ہے راوی کو روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس میت کی بیوی تھی. یار عقل کی بات ذرا سوچیں کہ گھر میں شوہر کا جنازہ دفن ہوا ہے اور بیوی اٹھ کر دعوتیں لوگوں کو کھلا رہی ہے. عقل بھی یہ نہیں مانتی ہے, قرینے قیاس بھی یہ نہیں ہے. لیکن ہم نے دوسری جگہ مسند احمد کی اور اسی طرح سنن کبریٰ کی حدیث کو دیکھا تو مرنے والا انصاری تھا اور دعوت دینے والی قریشی عورت تھی. وہاں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ ایک کرشیہ خاتون آئی اور اس نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ کھانا کھاتے جائیں, میں نے آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے دعوت پکائی ہے. تو امرأۃ ہی
कहने में, यानी उस मैयत की बीवी बताने में रावी को क्या लगी है, गलती लगी है। अगर ना इस हदीस से पता चलता है कि ये उसकी बीवी नहीं है, बल्कि वहां करीब कोई औरत थी, सिर्फ इमरातुन था, इमराती ही नहीं था, एक औरत का लफ्ज था, बीच में हा का इजाफा कर दिया गया, चाहे वो लिखने में गलती हो गई या बयान में गलती हो गई, जिस वजह से ये माना निकाला गया कि जी नबी अलैहिस्सलाम ने मैयत की जनाब उधर दावत खाई, उसकी औरत, उसकी बीवी ने पकाई। ऐसे होता है, ऐसे हो सकता है कि जनाजा हुआ हो साहबी का, तो पता होता है ना कि कोई और आए ना, महबूब तो आएगा, साहबा को पता था, तो इसलिए ये गुलामा थी मेरे नबी की। क्या होगा कि मेरे कबीले में, हमारे मोहल्ले में हुजूर की तशरीफ आवरी हो गई है, चलो जनाजा पढ़ के रहेंगे तो मैं अर्ज कर दूंगी हुजूर इसी बहाने मेरे घर भी आ जाएं और मैंने खाना पकाया, आप खा जाएं। तो बिल्कुल अगर कोई और बंदा किसी को दावत पका कर खिलाता है तो वो तो जायज है, लेकिन मैयत के घर में मैयत की तरफ से उसके पैसे, उसके तरके के माल को, चाहे वो आप खरात का नाम दें, जो मर्जी नाम दें, वो आप दावत मैयत किसी सूरत में भी खा नहीं सकते हैं। और ये हनफी फिका के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर हमारे मुतून में लिखा हुआ है, वयुक्रो इत्तिखाज़ु ज़ियाफ़ा मिन अत्ताम मिन आलिल मैयत, सीधा सीधा आले मैयत की तरफ से खाने की दावत खाना मकरूह है। ये मकरूह तहरीमी है। क्यों? कि ये दावतें कबूल करना ये तो खुशी के मौका पर होता है, ये खुशी तो नहीं है, ये तो गम का मौका है। और इसका शरई हुक्म क्या है? वही बिदअतुन मुस्तक़बहातुन, ये बिदअते कभी आए, ये क्या है? बिदअते कभी आए, इसके करीब नहीं जाना। यही अल्फाज मराकीउल फलाह के अंदर मौजूद है, फतावा शामी के अंदर मौजूद है कि युकरा इत्तिखाज़ु ज़ियाफ़ा फ़ी अय्यामिल मुसीबा, कि मुसीबत के दिनों में मैयत के लिए, यानी मुसीबत के दिन है ना, तो वहां ज़ियाफ़त पकाना, खाना पकाना ये मकरूह है। और ये उस सूरत में नॉर्मली मकरूह है कि वैसे पके, और अगर वो तरके में से पकाएंगे फिर तो सरकार ये इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, ये इसके हुक्म में ये मामला आएगा। ये तो नॉर्मल की बात हो रही है। तो यहां लिखा है कि ये बिल्कुल लायक इस बात की, यानी नहीं है किसी को इख्तियार के वो मैयत की क्या करें, दावत वो खाएं। इसी तरह इमाम बज़ादी वजीज के अंदर लिखते हैं, युकरो इत्तिखाज़ु ताम फिल यौमिल अव्वल व सालिस, पहले दिन, त्रिये दिन या बाद में मैयत की तरफ से दावत पकवा कर लोगों को खिलाना, ये जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। तवज्जो है सबकी, बल्कि उल्टा पता है क्या चीज दुरुस्त है? हदीस में क्या साबित है? आओ फिर हदीस सुनो, आओ हदीस सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि एक और हदीस इब्ने माजा की मैं पहले अर्ज कर दूं, हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कुन्ना नरल इज्तिमा इला अल मैयत व सनातु तआम मिन अन्नियाहिया, कि मैयत के घर में लोगों का जमघटा लगाना और फिर वहां खाने खाना, फरमाते हैं हम इसको नोए में से एक नोए शुमार करते हैं, और नोए करने वालों पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। यानी ये काम लानतियों वाला है कि मैयत के घर में सारे ढेड़ खोल के बैठ जाओ, कि उधर सारे क्या करो, उधर सारे बैठ के खाना खाने लग जाओ। याद रखें, मैयत के घर में उसके पैसों से या उसके अपने घर वालों की तरफ से जो पका कर ज़ियाफत की जाए, भले वो खैरात के नाम पर ही क्यों ना हो, बरादरान इस्लाम ये दुरुस्त और जायज है? बोलिए, जायज नहीं है। बल्कि क्या जायज है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई, तो अल्लाह के नबी अबू दाऊद शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर, इब्ने माजा के अंदर, मुस्नद हुमैदी के अंदर ये रिवायत है, अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3132 है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्नऊ लिआल जाफर तआमन फइन्नहु कद अताहुम अमरुन शगलहुम व फी रिवायतिन यशगलहुम, जो है ना माजी के बजाय मुजारे का सीगा मौजूद है। फरमाया जाओ जाफर के घर वालों के लिए खाना पकाओ, क्योंकि उनके पास एक ऐसी खबर आई है कि जो जिसने इनको मसरूफ कर दिया है, यानी वो अपने उस परेशानी में लग गए। वो परेशानी में बाप मरा हो, भाई मरा हो, किसको खाने का होश होता है? फरमाया तुम पका के खाना ले जाओ। लिहाजा हजरत जाफर के घर में बाकी घरों से खाना पक के गया। हदीस नंबर 2 मुस्लिम और बुखारी में यह हदीस है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अन्नहा कानत इज़ा मातल मय्यत, कानत इज़ा मातल मय्यत, सीगे की तरफ तवज्जो करना है, मिन आलिया फइत्तमा लिज़ालिका निसा, जब कभी कोई फौतगी हो जाती तो औरतें वहां पर जमा हो जाती, जैसे होता है कि भाई फौतगी होती है तो लोग क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। सुम्मा तफर्रकना इल्ला आला व खासता, फिर जब औरतें चली जाती तो फिर घर वाले रह जाते और खास उस मैयत के करीबी लोग वहां रह जाते। तो अमारत बेबुरमा मिन तलबीना, तो आप हुक्म देती हैं अपनी लोंडी को या घर वालों को, किसी को भी, कि चलो भाई हांडी चढ़ाओ। हांडी में बुरमा, हांडी को कहते हैं, उसमें तलबीना पक्का, उसको पकाया जाता, फिर सुरीद बनाई जाती, सुरीद बनाकर फसुब्बत तलबीना तो अलैहा, हजरत बीबी पाक तलबीने को उस सुरीद के ऊपर डालती। सुम्मा कालत, फिर ये लेके जाती मैयत के घर वालों को खिलाती, जो औरतें होती उनसे कहती और कुल्ला मिना, खाओ इसमें से,
क्योंकि अल्लाह के नबी से मैंने सुना है, वो फरमाते हैं कि अत्तलबीन तो मुजिम्मतुन लिफवादिल मरीद व तज़ब बादल हुज़न, कि ये जो है ना तलबीना, तो ये मरीज के दिल को सुकून देता है और उससे गम को क्या करता है, दूर करता है। तो ये करो, खाओ। यानी सुन्नत रसूल ये नहीं कि ढेड़ खोल के दो, मैयत के घरों ना निकलो खाओ। सुन्नत रसूल ये है कि मैयत के घर वालों को खिलाओ, वहां खाना पका के लेके जाओ। और यहां क्या शुगल बना हुआ है, जुल्म अजीम है कि बेचारा उसका बाप मरता है, उसको जनाजे की फिक्र खत्म हो जाती है, उसको यह फिक्र होती है बरादरी की रोटियां कैसे पूरी करूंगा। लिहाजा सुन लो तमाम लोग, अगर यहां कोई अटक वाला, कोई पिंडी घेत वाला, कोई दीगर इलाकों वाला है तो सुनो, जितना खाना खाने वालों को गुनाह है उतना खाना पकाने वालों को भी गुनाह है। इन बुरी रस्मों से बचने में, निकलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने गांव के अंदर कई किस्म की बिदअत राइज थी, हम टकरा गए रिवाजों के साथ। हमने कहा भाई ठीक है, हमें छोड़ना है छोड़ दो। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह कई बिदअतें राइज थी हमारे गांव में, मेरे वालिद साहब टकरा गए। हालांकि उस वक्त वो इतना कोई बड़ा उनका नाम या इतना बड़ा सिलसिला भी नहीं था, लेकिन वो दीन का दर्द था, टकरा गए। हमने भी कई चीजों में अल्लाह की कसम में टकरा गए। हमने कहा भाई जिसने छोड़ना है हमें छोड़ दो, लेकिन सुन्नत की बरकत होती है, दीन की बरकत होती है। लोगों ने हमें छोड़ा नहीं, सारे हमारे साथ आकर मिल गए। इसी तरह टकराया जाए इन बिदअतों के खिलाफ, ना पकाएं खाना, ना पकाएं। कोई करीबी फोत हो कहो ये नाजायज है, और शुक्रिया पंजाब हुकूमत का, लेकिन ये तो पंजाब के एरियो के अंदर अप्लाई होगा, और वो भी यूं अप्लाई होना है। कितने अप्लाई होना है, गांव देहातों में किसने जाके पूछना है। इन्होंने सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारनी होती है, बाकी आपको भी पता है यहाँ कानून के हवाले से क्या पोजीशन है। बहरहाल चलो कानून बन गया, ये भी अच्छी बात है। अब अहम तरीन मसला, वक्त हो गया, लेकिन मैं ज़िमनन एक अकीदे के हवाले से और एक मसले की वजाहत भी कर दूं। ये क्या है कि बेहतर और मुस्ताहब ये है कि आप मैयत के घर में खाना, बोलो ऊंची आवाज से, खाना लेकर जाएं। और अजीजों रिश्तेदारों के लिए तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आज के दिन भी उसकी बच्ची, उसकी मां मरी है तो उसकी औलाद उठकर वो जनाब चूल्हा जलाए नहीं, तुम्हारे घर से पका पकाया लेके जाओ, उनको दिलासे दे के बिठा के खिलाओ, ये इंसानियत है। लेकिन यहां मसला दूसरा भी ज़हन में रखें, अगर रिश्तेदार खाना नहीं लेके जाते तो क्या हो। अब एक और नया बिदत वाला मसला, एक और नई जनाब वाला जिसे कहते हैं शुड़ुल। वो शुड़ुल ये छोड़िए, बाद मौलवियों ने नाम ने मौलवियों ने कि नहीं जी मैयत के घर में तो चूल्हा जलाना ही जनाब 3 दिन क्या है, हराम है और नाजायज, पता नहीं क्या से। ओ भाईजान नहीं है नाजायज। अगर रिश्तेदार खाना नहीं देते हैं तो आप घर में चूल्हा जलाकर भूखे न रहें, बच्चों को भी भूखा न मारें, खाना पकाएं और खाएं, बला कराइयत खाएं, कोई इसमें ममानियत शरी नहीं है। बेहतर है कि अगर कोई दे नहीं देता तो घर में पका के खाओ। ये किसने कहा है कि चूल्हा जलाना नाजायज है। कईयों ने तो इतनी जनाब इसमें हमारे दही इलाकों में, चूंकि हमें आना जाना होते देहातों में, तो त्रियादारियां तो पहले चूल्हा जलिया, अल्लाह मैयत की खैर करे, और अल्लाह तेरी खैर करे, मैयत का कुछ नहीं होना, अल्लाह मैयत की खैर करे। खुदा के बंदो, इस किस्म की बिदअत ये जनाब हमारे माशरे में जारी है। एक और गल, ये हमारे हजारे और कश्मीर में बाज़ इलाकों में ये होता है कि तीसरे दिन जनाब सारे घर के कपड़े सारे महल्ले की औरतें मिलकर धोती हैं और कहती हैं कि कोई कपड़ा भी जो ओपन सी हो ना रहे उसमें धो। अजी क्यों? वो जी आपको नहीं पता, ये कपड़े मकरूह हो जाते हैं और इन कपड़ों के ऊपर गैबी खून होता है जो मैयत के साथ आता है। हाँ खुदा दा वास्ता है, ना शरीयत ने जनाब धजियां उड़ाओ, ऐसा कोई शरई हुक्म नहीं है कि सारे महल्ले की औरतें इकट्ठी हों और उस घर के अंदर झाड़ू लगाएं और उस घर के अंदर सारे बर्तन निकाल के धोएं और उस घर के अंदर के सारे बिस्तरे की चादरों तक और बच्चों के कपड़ों तक सारा कुछ वो धोते हैं। हाँ ऐसा होता है कि मैयत का जो है ना अजीज रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और जाहिर इन 3, 4, 5, 7 दिनों में कपड़े बहुत सारे जमा हुए होते हैं। तो अगर कोई रिश्तेदार हेल्प आउट कर देते हैं कि यार इन बेचारों के घर की बोझ और बर्डन है, और मिलकर अगर ख्वातीन उस कपड़े को धो लेती हैं तो ये जायज है। इसको रिवाज बना लेना तो सारे घर के कपड़े कट गए उन्होंने धोना, ये बिल्कुल इसकी शरीयत के अंदर कोई शरई हैसियत नहीं है। और तुम टोकली अकबर वाले पूछोगे कि सरकार जी साड़ी देख पकती है, इसका भी जवाब दो, तो लो जी उसका भी जवाब दे देता हूं। अब सूरत आ गई कि ना तो वो खाना मैयत का बेटा पकाते हैं ना अपने घर वाले पकाते हैं, बल्कि जो जनाजे के लिए दूर दराज से आए हुए लोग होते हैं उनके लिए एक वक्त के मुताबिक खाना रिश्तेदार पकाते हैं। तो क्या यह जायज है ना जायज है? यह बिल्कुल जायज है, डट के खाओ। नहीं समझ आई? और भाई कोई अजीज फौत हो गया तो रिश्तेदारों ने कहा यार और कोई मरियो आया है, कोई कहां से आया है, ये तो शहर को आप छोड़ें। जो लोग देहातों में जनाजे पढ़ने जाते हैं उनको पता होता है कि वो पैदल रस्ते हैं, तो वहां तो ना होटल और ना कुछ, हम क्या करें। तो अब अगर अजीजों रिश्तेदारों मल्लेदारों की तरफ से वो मैयत के ऊपर बोझ ना हो और अपनी तरफ से वो क्या करें,
खाना पका के लोगों को खिलाएं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप मेहमान नवाजी करेंगे, आपको बड़ा सवाब होगा। लेकिन सुनियो गौर नाल, ये जो गांव की बनी होती है कमेटी, और उस कमेटी का आता है चंदा। अब अगर उस चंदे में मैयत को भी आप शामिल रखते हो तो फिर भी वही हुक्म है। हमारे हजारे में, हमारे कश्मीर में ये 99% आजकल ये कमेटियों वाला काम चल रहा है। आखिर में जो बरादरी की कमेटी होती है, लास्ट में चिट आ जाती है, हाँ जी फी बंदा 5,000 रुपया या फी बंदा 2,000 रुपया, जितना भी बनता है, ये जी वो रोटी वाला ये जरा जल्दी जल्दी पे ही दें। भाईजान, शरीयत के मसले जरा बड़े तलख भी होते हैं जब आप उसको सोचें, गौर करें। अगर इसमें मैयत शामिल है, यानी उसका घर, मैयत वाला अपना घर, उसको भी कमेटी में, चंदे में शामिल रखा हुआ है, तो इसका वही हुक्म है जो पहले मैं बयान कर चुका हूं। और अगर वो मैयत इसमें शामिल नहीं है, अब दो हैसियतें हैं कि वो चंदा जो दिया जाता है वो खुश होकर दिया जाता है, यानी खुशी के साथ लोग कहते हैं कि जी ठीक है, ये हमारी तरफ से आने वाले, हमारे उमूमन मोहल्ले की कमेटियां होती हैं कि जी हमारे मेहमान आएंगे, हम उनको खिला देंगे, तो बिल्कुल ठीक है। तो जी इसको वो अपना बोझ समझते हैं और ना देने वाले पर तान तशनी हो तो यह भी नाजायज है। जी हाँ, शरीयत को अपनी तबीयतों के उसमें ना करें। लिहाजा सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि बजाय ना कमेटियां इकट्ठियां करने दे, बजाय ये चंदे इकट्ठे करने के, अगर एक अजीज के यहां फौतगी हुई है तो कोई मौत नहीं पड़ देती है, वो अपनी तरफ से 1, 2, 3, 4 देंगे, पका के कोई दूर दराज के खुसूसी मेहमान आए तो उनको जनाब वो कर दे। मुझे ये बात इंतहाई बुरी लगती है कि उठे उधर जनाजा मुकना है। हमें भी कई दफा मजबूर किया जाता है, मेहमान सारे खाना खा के जाएं, जनाजे के बाद रोटी फलाने घर में, अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला, ओए कोई उरस हो रहा है कि तुसी कहंदे हो लंगर खा के जाए हो, ये कोई जलसा हुआ है? बिल्कुल इस किस्म के ऐलानात मैंने जहां कहीं भी मेरा इख्तियार पहुंचा, मैं तो कहीं धो के रख सकता, बंदे पुत्र बनो, जनाजे के मौके पर खाने के ऐलानात करते हो। हाँ, वैसे अलग से आप मेहमानों को कह देते हो भाई मेहमान है, आप दूर से आए, खाने की सहूलत मौजूद है, अगर को खा के जाता है तो खाए, पकड़ के तरू के खड़ना बंदे बने करो, कोई शरीय हैसियत नहीं है। अगर कोई मजबूर है बेचारा, जैसे देहातों में मैंने आपको बताया कि वहां होटल वगैरह नहीं होते, 2-2, 4-4 घंटे का पैदल सफर होता है, तो वहां अगर कोई मसाइल हैं और इस तरह का एहतमाम अगर होता है, कोई अजीज रिश्तेदार पका देते हैं तो खाएं, जे ना खा दे तो मौत नहीं पह जाती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है, मेरे बुजुर्गों के जमाने से कोशिश होती है, बात जगह पर बहुत मजबूरी में फंस जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हुई है कि कभी भी मैयत के घर में अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने कभी नहीं खाना खाया, 2-2, 4-4 घंटे पैदल चल के भी गए तो नहीं खाया, कोशिश की है। बाज अगर मजबूरी पड़ गई है तो दूर देखा है कि वाकयातन अलग से, जिस तरह वो हदीस में आया है कि अलग से किसी ने अगर कोई खाने का इत्मीनान किया है तो उसके पास बैठ के चाहे दाल लस्सी कर ली है लेकिन वहां खा ली है। मैयत के घर में खाने से इज्तिनाब करें, कोई मौत नहीं पड़ती है। इतनी ज्यादा हदीसें इसके खिलाफ हैं तो